Good morning. Myself Rifa Said, 11th Science. We are discussing modern periodic table. Actually, before this, we have talked about the development of periodic table, but all the previous models are based on the fact that physical and chemical properties are periodic function of their atomic weight. But it was Moseley who first performed experiment on X-ray spectrum, and he found out that when wavelength, square root of wavelength of spectral lines of element versus atomic number is a straight line, whereas atomic weight doesn't give the perfect result. And then he thought it is atomic number which is the fundamental property of the elements. And he proposed modern periodic law, which says that physical and chemical properties are periodic function of the atomic number. This thing you have to learn, that atomic number is our physical fundamental property. Now, next, we will study the characteristics of modern periodic table. As in Mendeleev, here also horizontal rows are known as periods and vertical columns are called groups. First, we will talk about groups. There are in all 18 groups. As I am showing you, it has 18 group 1 to 18. These all are groups 1, 2, 3 and so on till 18. Then what we study here, elements of group first to 13 have their outermost shell incomplete. That is, first, second, 13, 14, 15, 16 and 17. They have their outermost shell incomplete, while each of their inner shell is complete. Each of their inner shell is complete and they are called representative elements. Whereas elements of 18th group, they have all their shells completely filled and they are called noble gases. Then come to 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Yes, it is here. 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. तो इनको अगर आप देखें तो आप क्या देखते हैं, देयर पेनल्टीमेट शेल, जो शेल अल्टीमेट से पहले वाली है वो इनकम्प्लीट होती है एंड दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. And the one which lie below, yes, you can see here consisting of two series and they are called lanthanide and actinides. Their pre-penultimate shell, एक आपके आउटरमोस्ट शेल हो गई, एक उससे अंदर की शेल हो गई और एक उसके अंदर एक और, जिसको हम कहते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल. तो आपकी अल्टीमेट शेल यहाँ पे इनकम्प्लीट है और इसको हम कहते हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. एंड वन मोर थिंग, ये दोनों की दोनों सीरीज़ हमारे
थर्ड ग्रुप को बिलोंग करती है। ये बात आपको याद रखनी है कि लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स बिलोंग टू थर्ड ग्रुप। सो these are highlights of groups in periodic table. Now we will discuss general characteristics of group. Number of valence electron remains same. जब आप ग्रुप्स को देखेंगे तो फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में सभी एलिमेंट्स का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन will be 1. Then valency again will remain same. Properties, both physical and chemical, shows gradation on moving from top to bottom. जब आप ऊपर से नीचे की ओर मूव करेंगे तो देयर विल बी ग्रेडिएशन इन प्रॉपर्टीज़, जो हम वापस डिस्कस करेंगे आपके साथ पीरियोडिसिटी में। देन साइज, अगर मैं आपसे बात करती हूँ साइज़ की तो आप देखेंगे साइज ऑफ एटम increases on going down in a group, क्योंकि आपकी एक एक शेल बढ़ रही है। मेटालिक कैरेक्टर increases, number of electron shells increases. As I have given this in a table where we are talking of first group, lithium electronic configuration 2 1. Then नंबर ऑफ शेल सेकेंड, आप जब नीचे उतरते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, और ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका जा रहा है थर्ड शेल में, तो एक शेल बढ़ गई। इसी तरह पोटेशियम 2 8 8 1 और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू फोर्थ शेल। रुबिडियम, last electrons enter into fifth shell. Cesium, last electron enters into sixth shell, and similarly in francium last electrons enters into seventh shell. तो ये तो हमने डिस्कस किए ग्रुप्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पीरियड्स। देयर आर 7 पीरियड्स और इन 7 पीरियड्स में आप देखेंगे हमारे जो आपके 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7. In all there are 7 rows, horizontal rows, और इनको आप क्या कहेंगे? पीरियड्स। यहाँ हम क्या देखते हैं? फर्स्ट रो आपके कंसिस्ट है किसके? 2 एलिमेंट्स के, और इसको आप कहते हैं वेरी शॉर्ट वे। सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड, देखिए आप पीरियोडिक टेबल अपना खोल के तो आप क्या देखेंगे? दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं और इनको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स। फोर्थ और फिफ्थ दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं और इनको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स। एंड सिक्स्थ और सेवेंथ, सिक्स में 32 एलिमेंट्स, वेरी लॉन्ग पीरियड। सेवेंथ में इट हैज़ कैपेसिटी ऑफ 32 एलिमेंट्स। अभी हमारे 106 एलिमेंट्स तक डिस्कवरी 116 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, तो अभी भी हमारे 2 जगह खाली हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी एडेड इन द होल ऑफ पीरियड। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। अगर आप यहाँ पे देखिए, मेरे ख्याल से तो हमारा जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इट इज़ लाइक अ मैजिक, सो साइंटिफिक।
क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. आई जस्ट लव दिस periodic table, its characteristics. Just imagine how they have arranged all the known elements in a one table with so many qualities. So let's see. जब हम फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं तो आपका प्रिंसिपल वैलेंस शेल है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि आप n के द्वारा बताते हैं, n इक्वल टू 1. देन ऑर्बिटल्स जो इसके अंदर भरे जाएंगे, s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं, उसी तरह हमारे पीरियोडिक टेबल में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम. Then come to second period. Here principal quantum number is 2. आपके पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, 2s 2p. इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, जैसा कि आप जानते हैं s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, हमने यहाँ लिख दिए 2. और p ऑर्बिटल जो कि px py pz है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स आपके आते हैं 6. तो 2 + 6 8. एंड इसी के अकॉर्डिंग आपके सेकेंड पीरियड में टोटल एलिमेंट्स हैं 8, लिथियम से लेके नियॉन तक. देखिए ध्यान से, इट्स सच अ मैजिक, व्हाट अ कोरिलेशन. आप भी इसको जब सोचेंगे तो इट्स अ यस ऑसम डिस्कवरी. थर्ड, n इक्वल टू 3. 3s 3p. अगेन s में 2, p में 6. तो टोटल कितने हैं? 8 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी फिल्ड. देन वी कम टू फोर्थ पीरियड. और आप यहाँ देखेंगे आपके फोर्थ पीरियड में हमारे फोर्थ शेल है, तो इसके पास है 4s 3d और 4p. आपको पता है s में 2 आते हैं, p में 6 और d में हमें पता है दे आर 5 ऑर्बिटल्स और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 10. तो 2 + 10 + 8 18. एंड आप देखिए कमाल, फोर्थ पीरियड में आपके 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं, पोटेशियम से लेके आप आगे चलेंगे क्रिप्टॉन Kr. इसी तरह फिफ्थ पीरियड में आपका शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 5, 5s 4d 5p. अगेन देयर आर 18 electrons can be filled maximum, and that is the maximum number of elements. In the sixth period, देखिए principal quantum number is 6 and we have 6s 4f 5d 6p. and आप electrons देखिए 2f, you all know that it is 7 orbitals, so it is 14, 10 and 6. तो total आपके हो गए 32 and that is yes. and इसमें 7th पीरियड और 6th पीरियड में आप लैंथेनम को काउंट करेंगे तो आपके एलिमेंट्स 14 लैंथेनम के हैं. ठीक है बच्चे? यस, 14 एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनम एंड 18 एलिमेंट्स ऑफ 6. तो इट विल बी टोटल 32 और 7 जो अभी इनकम्प्लीट है पर इसमें भी 32 एलिमेंट्स फिल किए जाएंगे. So you see the coordination. Yes, is it clear बच्चा? I hope it is quite clear. Now number of shells on moving from left to right in a period. तो आप क्या देखते हैं जब हम मूव करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और सेम शेल में ही जाएंगे. जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ सेकेंड पीरियड.
lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. And we have 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका सेम है 2, और प्रोग्रेसिवली आप इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हेन वी मूव. साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस, जो हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे. मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. नाउ व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपके जो मेंडलीव के ड्रॉबैक्स थे वो इस पीरियोडिक टेबल में पूरी तरह से, तो मैं नहीं कहूँगी, बट मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है. हैंस नो प्लेस इज रिक्वायर्ड फॉर आइसोटोप्स. एंड दूसरा आपके आर्गन, कोबाल्ट, बेरियम जो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रॉन्गली प्लेस थे, वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से बिल्कुल करेक्टली प्लेस्ड हैं. देन दो ड्रॉबैक्स इसमें स्टिल हैं. एक है हाइड्रोजन की पोजीशन जो कि एनॉमलस है, हम उसको फर्स्ट ग्रुप में भी रख सकते हैं और 17th में. तो इसलिए अगर हम फर्स्ट में रखते हैं तो 17 ग्रुप को फेवर करने वाले ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, और 17 में रखते हैं तो फर्स्ट ग्रुप वाले ऑब्जेक्शन रेज करते हैं. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हाइड्रोजन चैप्टर में. एंड देन पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, यहाँ पे भी मेन टेबल में इनको जगह नहीं दी गई. ऑल राइट बेटा, ये तो बात हुई हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की. नाउ हम देख रहे हैं कि एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे हैं. एंड पहले जैसे यूरोप में हुआ, रशिया में हुआ, और वहाँ के साइंटिस्ट ने अपने अपने नाम दे दिए, तो इट कॉज अ प्रॉब्लम. जैसे 104 एलिमेंट का यूरोप में नाम दे दिया रदरफोर्डियम, एंड रशिया में नाम दे दिया कुर्डोडियम. तो इस तरह का कॉज हो या प्रॉब्लम हो, इसको हटाने के लिए IUPAC जो जिनेवा में सेंटर है, उन्होंने रूल्स दिए हैं, तो हम उसकी बात करते हैं. तो यहाँ आप क्या देखते हैं बेटा, हमने इनके डिजिट्स के, लैटिन वर्ड्स के प्रीफिक्स दे दिए हैं और एब्रीविएशन दे दिया है, और हमने कहा है अगर 0 है तो नील लगाना है, और लास्ट में सब में सफिक्स लगेगा EM, IUM. बहुत ही सिंपल है. अगर आप देखिए 101, तो 101 में इसका अन है यूनि, तो आप लिखेंगे अन. 0 आया तो लिखेंगे नील, वापस 1 आया तो आप लिखेंगे अन, तो अन नील अन EM. ठीक है. इसी तरह आप 102 की बात करोगे तो अन 1 के लिए, 0 के लिए 2, सॉरी 0 के लिए नील और 2 के लिए बाई, तो अन नील बी बाई EM. और आप इनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल में और बाकी दोनों को स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे. इस तरह आप नाम लिखते हैं. तो आई want you to write names of all the elements. Now, after giving them systematic name, ऑफिशियली टाइम आप जब नाम देंगे तो इट विल बी फर्स्ट पेटेंट IUPAC में दिया जाएगा, एंड देन दे विल डिसाइड व्हाट विल बी द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफिशियल. ऑलराइट. नाउ वन मोर थिंग, आपका पीरियोडिक टेबल में लास्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वो कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया है. अगर वो S ऑर्बिटल में जाएगा तो वी विल कॉल इट S ब्लॉक एलिमेंट्स. इफ इट गोज इन P orbital, it will be called P block. If it goes in D orbital, it will be called D block, and if it goes in F orbital, it will be called F block. तो आपके फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप बिलोंग्स टू
एस ब्लॉक, क्योंकि यहाँ आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एंटर कर रहा है एस ऑर्बिटल में, और हमने इनको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एस 1 और 2, 1 फॉर एल्कली एंड 2 फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की भी बात कर रहे हैं। दे आर सॉफ्ट मेटल्स, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, वेरी रिएक्टिव, डू नॉट अकर प्योर, नेचुरली रिएक्टिव है तो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर +1 फॉर द फर्स्ट ग्रुप एंड +2 फॉर द सेकेंड ग्रुप, एंड दीज आर प्रीडोमिनेंटली, इस ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके होते हैं आयोनिक, एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम, दे फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स जो हम बाद में केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। देन आपके जो 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, वहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है पी ब्लॉक में एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में एस में एंटर करेगा तो हीलियम को हम बोलते हैं वो एस ब्लॉक को बिलोंग करता है, बाकी सब बिलोंग करते हैं पी ब्लॉक को। और इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP 1:6, 13 में NP1, 14 में NP2, 15 में NP3, 16 में NP4, 17 में NP5 and 18 में NP6. Now here what we see, they have high ionization energy, they are highly electronegative and both ionic and covalent compounds are present. एक और बात जो हम यहाँ देखेंगे, they have metals, metalloids and नॉन मेटल्स। ये वो ब्लॉक है जिसमें आपको सब तीनों तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे। देन वी कम टू डी ब्लॉक, तो आपका 3rd से 12th तक का जो एलिमेंट्स हैं दे बिलोंग टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज ये फर्स्ट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज़ हैं और इनके बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन दिखा रहे हैं, जैसे मेटल से नॉन मेटल, लो आयोनाइजेशन एनर्जी से हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, तो हमने इनको क्या बोला है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, तो यहाँ वो जाता है डी ऑर्बिटल में। देन इसी तरह आप लैंथेनम और उसमें देखेंगे एक्टिनाइट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एफ ऑर्बिटल में, और इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पे ख़ास बात ये है कि जो एक्टिनाइट्स हैं दे ऑल आर रेडियो एक्टिव, जबकि लैंथेनाइट में सिर्फ एक एलिमेंट रेडियो एक्टिव है जिसका नाम है प्रोमीथेनियम। देन आपके जो यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। Here students you see this periodic table is just a magic. I to call it magic paper because it is so scientific and it made the study of known elements so simple and so easy. Now, in the next class, I will tell you how to calculate period number, group number, and then we will discuss periodicity. Till then, take care, do your work thoroughly, and good day.